Next is your assembly language syntax, that is continue. Operation field. In the operation field, what are the instructions for operation field? Symbolic operation code, that is called as a opcode. Symbolic opcode translated into machine language opcode. Describe operation function. Example, move, add, subtract and increment. What are the assembly directive? Contains pseudo operation code, that is called as a pseudo code. So what is exactly pseudo code? The pseudo code is a short representation of your algorithm, that is called as a pseudo code. Second is not translated into the machine code when it is in the assembly directive. Tell the assembler to do something, that means you have to do something, that is you have to do an execution or a compilation. Next is your operand field. Specifies data to be acted on, जिसपे आपका डेटा एक्ट होता है, that is called as a operand field. 0, 1 और 2 are the operand. Operation मतलब क्या है? Suppose there is a INC AX. AX क्या है? तो AX आपका क्या हो गया? जो भी आपकी वैल्यू रहेगी. अब AX मतलब आपका ऑपरेंड एंड INC इज योर ऑपरेशन फिल्ड एंड AX इज योर ऑपरेंड. Then add AX, 2. Then 2 is your operand, AX is your operand and add. You are performing this from action and for that action we require data. For example, addition के लिए हमें 2-3 वेरिएबल्स लगने वाले हैं. तो A, B and C are the operand and the addition is the operation. Next is your comment field. A semicolon marks the beginning of a comment. A semicolon in the beginning of a line makes it all a comment line. Good programming practice. Comment on every line. आपको every line पे comment करना है. In previous video I tell you कि आपको comment किस तरह से करना है. These are the examples. Next is your data representation. Data representation in the last video we will explain. First is your 11011 is decimal, then B it's a binary, then third is decimal. So these are the data representation. The sign numbers represented using 2's complement. Next is your character. As I tell you, the character always represent in a double quotes and in a single quote, and that is encoded by a ASCII code. The A has a ASCII code 41H, the small a has a ASCII code 61H, the 0 has ASCII code 30H and line feed has a ASCII code 08H. So that will be executed and we will see in a previous video. So these are some characters representation. The value of the content of a register or a memory is dependent on the programmer. Suppose if the let AL equals to FFH, so the represented the unsigned number 255 and represented the number -1. अगर साइन नंबर है तो दैट इज़ अ -1 और अनसाइन नंबर है दैट इज़ अ 2's कॉम्प्लीमेंट. अगर साइन नंबर है तो आपको 2's कॉम्प्लीमेंट करना है. एंड दिस इज़ फॉर AH एंड BL. ओके, सो दिस इज़ ऑल आर द 8-bit registers. Next is your variable declaration. As I tell you, you do the variable declaration. Assembly directive format defining what is a byte variables. Assembly directive format defining a byte variable, उसको कहते हैं DB. It's called as a data byte. Name DB initial value. A question mark placed in its initial value leaves the variable uninitialization. So I DB4 define variable I with the initial value 4. मतलब मैंने I को डिफाइन किया है DB मतलब डेटा बाइट और उसको किससे इनिशियलाइज किया है विद द वैल्यू 4. उसके बाद JDB. अब डिफाइन वेरिएबल J विद अनइनिशियलाइज वैल्यू. अब वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है. अगर आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा तो इसका मतलब आपने कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है. नेम DB कोर्स. So allocate 6 byte for a name. Name मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब कोर्स के कितने बाइट से 6 बाइट से. So we allocate for that. Next is your KDB 5, 3, -1. Allocate 3 byte मतलब एक -1 के लिए, एक 3 के लिए और एक 5 के लिए. So this is like this. एक पाई के लिए अलोकेट होगा, एक 3 के लिए अलोकेट होगा और एक FF के लिए अलोकेट होगा.
Understand? So this is the 3 bytes are allocated. Word variables. Assembly directive format defining a word variable. अब कैसे इनिशियलाइज करते हैं उसका नाम, देन DW, देन इनिशियल वैल्यू. So first is your IDW4. So you can see here in the right side I04, उसके नीचे वैल्यू 00. JDW -2, अगर -2 रहेगा तो आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो JFEFF. एंड KDW अब क्या करोगे IABCH. तो आप लोगों ने क्या किया, 1A इज इन द वन फॉर्मेट एंड BC इज अ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट. H मतलब क्या, हेक्साडेसिमल. तो 1A एक मेमोरी में जाएगा और BC की वैल्यू 1A. ओके. LDW 01 मीन्स क्या, इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ 30 एंड 31. सो दीज आर द वर्ड वेरिएबल्स. डबल वर्ड वेरिएबल कैसे स्टोर रहते हैं, दो टाइप में. यहाँ पे कैसे दो टाइप में स्टोर होते हैं. उसी तरह डबल वर्ड फॉर्मेट कैसे है, नेम होता है, DT होता है और उसका इनिशियल वैल्यू होता है. तो पहले है DT 1FE 2A B2 0H. तो पहले दो फिर दो फिर दो फिर दो, दैट मीन्स 20 AB, देन आफ्टर दैट E2 एंड लास्ट वन इज़ 1F. फिर JDD -4 होगा तो FF जो लास्ट की कंडीशन है वो 3 मेमोरी में चले जाएंगे और FC J की वैल्यू जो कुछ भी है वहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगी. नेम कांस्टेंट. EQ यूज सूडो कोड यूज टू असाइन अ नेम टू द कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे. वेरिएबल मीन्स वी कैन चेंज द वैल्यू. मेक्स असेंबली लैंग्वेज ईजियर टू अंडरस्टैंड. नो मेमोरी अलोकेटेड फॉर EQU नेम्स. LF EQU 0AH. अब उन्हें क्या बोला, असाइन द कांस्टेंट. जब भी आपको असाइन करना है तभी आपको क्या लिखना है, EQU. सो LF, सो मूव DL, 0AH मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. दिस इज द वैल्यू कहाँ पे मूव हो जाएगी, DL में. मूव DL, LF मतलब वैल्यू कहाँ पे मूव हो जाएगी, DL में. LF की वैल्यू कहाँ पे मूव हो जाएगी, DL में. प्रॉम्प्ट EQU टाइप योर नेम. मैसेज DB टाइप योर नेम. मैसेज DB प्रॉम्प्ट. ओके, जो भी आपको करना है वो आप लोग, दिस इज अ सम सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है. नेक्स्ट इज योर DUP ऑपरेटर. यूज टू डिफाइन एरेज हुज एलिमेंट शेयर कॉमन इनिशियल वैल्यू. जब आप लोग कॉमन इनिशियल वैल्यू शेयर करोगे तो यू हैव टू यूज अ DUP ऑपरेटर. सो इट हैज़ अ फॉर्म रिपीट _ count DUP and value like this. Number DB 100 DUP 0. Allocate an array of 100 bytes, each initialized to 0. Name DW 200 DUP. Allocate an array of 200 and uninitialized. यहाँ पे 0 इनिशियलाइज किया है इन प्रीवियस एग्जाम्पल. अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, कुछ भी वर्ड इनिशियलाइज नहीं किया है. सो वी रिटन एज अनइनिशियलाइज वर्ड्स. 2 इक्विवेलेंट डेफिनेशन. लाइन DB 5, 4, 3 DUP 2, DUP 0, 1. मतलब DUP के 0th पोजीशन पे क्या आपका आ रहा है, 4 आ रहा है. उसके बाद 5 आ रहा है ऑन सेकेंड पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है आपका 3 है. सो यू कैन टाइप इक्विवेलेंट डेफिनेशंस ऑल्सो. लाइन DB में आपका 5, 4, 2 ऐसे भी कॉमा करके आप लोग लिख सकते हो. सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन फॉर DUP. नेक्स्ट इज योर इंस्ट्रक्शन टाइप. फर्स्ट इज योर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन अ रजिस्टर एंड मेमोरी लोकेशन और इनपुट आउटपुट पोर्ट. जब भी आपको रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रही है तो यू हैव टू यूज़ मूव, एक्सचेंज, LPA, पुश, पॉप, पुशएफ, पॉप ऑफ एंड इन एंड आउट. सो दीज आर द इंस्ट्रक्शन वी हैव टू यूज़. नेक्स्ट इज योर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन. फर्स्ट इज योर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट इज योर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन. परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन बाइनरी और बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स. ओके, अब अरिथमेटिक कौन से हैं, ऐड है, सब है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ADC, SBC, SBB, NEG, CMP, मल, IMUL, div, IDiv, CID. These are the arithmetic instruction. Next is your bit manipulation instruction. Perform shift, rotate and logical operation on memory location and register. जब भी आपको कोई भी चीज़ शिफ्ट करनी है या रोटेट करनी है दैट टाइम यू हैव टू यूज़ अ बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन. अब बिट मैनिपुलेशन कौन से आते हैं, SHL, SHR, शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, ROL, ROR, RCL, RCR, नॉट, एंड, और, XOR and TAST. So not and or are the logical operation, ROR for the rotate and S for the shift left, shift right. Okay.
So these are the some rotation logical operation. Next is your control transfer instruction. The control sequence of a program execution include jumps and procedure transfer. जब भी आपको कंट्रोल किसी और की तरफ ट्रांसफ़र करना है, दैट टाइम यू हैव टू यूज़ दिस कंडीशन. उसमें जंप आता है, जेजी आता है, जेएल आता है, लूप्स आते हैं, कॉल आता है, लूप एनजेड आता है. सो दीज आर लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल फॉर द कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. यू कैन सी हियर. नेक्स्ट इज योर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन. मूव, कंपेयर एंड स्टैंड द स्ट्रिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन. जब मूव कंपेयर आएगा तो दिट इज़ अ स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्शन. इसमें मूव्स आता है, मूव एस बी आता है, मूव एस डब्ल्यू आता है, सी एम पी सी एस आता है, लोड एस डब्ल्यू आता है, एस टी ओ एस फॉर द स्कैनिंग पर्पज, फॉर द कंपेयरिंग पर्पज एंड फॉर मूव पर्पज वी हैव टू यूज दिस इंस्ट्रक्शन टाइप. सो यू कैन सी हियर. नेक्स्ट इज योर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन. In the interrupt instruction, interrupt processor to service specific condition. interrupt मतलब क्या करना, किसी चीज़ को आपको होल्ड करके रखना है. जब तक आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक तो प्रीवियस आपको होल्ड करना है. सो दैट टाइम यू हैव टू यूज द इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन. इन द इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन वी हैव अ INT, INTO and IRET. Then we have a process control instruction. Set and clear status flags and change the processor execution state. जब भी आपको प्रोसेसर की एग्जीक्यूशन स्टेट चेंज करनी है या आपको सेट या क्लियर करना है स्टेटस फ्लैग को, दैट टाइम यू हैव टू यूज अ प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. इन अ प्रोसेस कंट्रोल वी हैव STC, STD एंड STI. नेक्स्ट इज योर मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन. इन द मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन वी हैव अ NOP, WAIT wait इंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट इज योर सम जनरल रूल्स. बोथ ऑपरेंड्स हैव टू बी ऑफ द सेम साइज. हाँ, तो लीगल कौन सा है इसमें से? मूव AX, BL, मूव AL, अब AX मतलब 16 बिट रजिस्टर है. टू बी हैव द सेम साइज. टू बी मतलब AL एंड AH का साइज मतलब दोनों रजिस्टर का AL और BL का साइज अगर सेम है. अब फर्स्ट में AX का जो साइज है वो 16 है और BL का 8 है. तो 8 ऑब्वियसली 16 ऑब्वियसली 8 में नहीं चला जाएगा. तो AL, BL, AH, BL ये दो लीगल है. नेक्स्ट इज योर बोथ ऑपरेंड कैन नॉट बी मेमोरी ऑपरेंड साइमल्टेनियसली. ओके, ऑपरेंड कैन नॉट बी मेमोरी ऑपरेंड साइमल्टेनियसली मतलब दोनों अगर ऑपरेंड हो गए तो साइमल्टेनियसली वो मेमोरी के नहीं हो सकते. जैसे कि मैंने क्या बोला कि AX आपका 16 है और BL आपका 8 बिट है, तो 16 और 8 बिट नहीं चलेगा. अगर चाहिए तो 16 ले लो और 8 ले लो. 16 और 8 नहीं चलेगा. सो दैट्स वाई जो बाकी के दो है मूव AL, BL है लीगल है. अब मूव I, J ये इलीगल है और मूव AL, I ये लीगल है क्योंकि एट टाइम एक ही आपके मेमोरी में जा सकता है. नेक्स्ट है आपका फर्स्ट ऑपरेंड कैन नॉट बी एन इमीडिएट वैल्यू. इमीडिएट वैल्यू मतलब क्या? ऐड 2, AX मतलब वैल्यू नहीं हो सकती इसके अंदर. पहले आपकी कोई भी डिजिटल वैल्यू नहीं. आपका पहले क्या होगा ऑपरेशन. पहले क्या होगा ऑपरेंड कौन सा होगा? AX. पहले रजिस्टर का नाम होगा, उसके बाद इनिशियल वैल्यू होगी. मतलब ऐड AX, 2 ये लीगल है डिक्लेरेशन. अगर दूसरा कोई आप लोग कर रहे हो कि ऐड 2 या ऐड 3, AX वो इलीगल डिक्लेरेशन. सो फर्स्ट ऑपरेंड कैन नॉट बी. अगर फर्स्ट आपका जो भी ऑपरेंड होगा वो आपकी वैल्यू नहीं हो सकती. टोटल 2 ऑपरेंड है, एक 2 के जगह का, AX की जगह का. ठीक है. मेमोरी सेगमेंटेशन. अ मेमोरी सेगमेंटेटेड इज अ ब्लॉक ऑफ 2⁻16 दैट इज अ 64K बाइट के बराबर है. मतलब हर एक सेगमेंट के लिए 64K की बाइट है. टोटल कितने हो गए फिर आपका 1 MB 1 KB का बाइट हो गया. ईच सेगमेंट इज आइडेंटिफाई अ सेगमेंट नंबर. सेगमेंट नंबर इज 16 बिट मतलब 0 to FF तक. अ मेमोरी लोकेशन इज स्पेसिफाइड बाय एन ऑफसेट विद इन अ सेगमेंट. लॉजिकल एड्रेस सेगमेंट एंड ऑफसेट. A4FB 487H means offset and 487H within a segment. Okay, so these are the some declaration. Next is your physical address. कैसे होता है? सेगमेंट इंटू 10H प्लस ऑफसेट. मतलब अगर आपका सेगमेंट होगा फिर उसको इंटू करना है 10H और देन योर ऑफसेट दैट इज अ 20 बिट एड्रेस होता है. फिजिकल एड्रेस मैप्स टू सेवरल लॉजिकल एड्रेस. ओके, सो दिस कैन बी मैप टू द सेवरल लॉजिकल. जो आपका फिजिकल लॉजिकल एड्रेस को मैप कर सकता है. नेक्स्ट इज योर मेमोरी सेगमेंटेशन. लोकेशन ऑफ द सेगमेंट. अगर सेगमेंट 0 से स्टार्ट है एट द एड्रेस ऑफ 000H रहेगा एंड एंड